سانحہ گل پلازا کی آگ تو بجھ گئی۔ ریسکیو آپریشن کے بعد عمارت کو بھی سیل کر دیا گیا، لیکن یہ حادثہ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا۔ جہاں باق افراد کے لواحقین ان جوابات کے منتظر ہیں کہ آگ حادثاتی طور پر لگی یا لگائی گئی، گل پلازا کے دروازے بند تھے یا کھلے تھے۔ ایسے اور بھی کئی سوال ہیں جن کی تحقیقات کے بعد اصل کہانی سامنے آئے گی۔ مزید جانتے ہیں شایان علی سے۔ شایان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سانحہ گل پلازا کے حوالے سے جو بات ہے کہ یہاں کا جو آگ تھی وہ تو بجھ گئی ہے، لیکن جو اہل خانہ جو متاثرین ہیں وہ ابھی بھی جو ہے ہمیں غم میں جو ہے مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی جانب سے جو یہاں پر بار بار چکر کاٹے جا رہے ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ ان کے جو مسنگ پرسنس ہیں ان کے لیے پریشان، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا جو مالی نقصان ہوا ہے اس کے لیے بھی پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے جو فارم دیے گئے تھے اس کی جو کاغذاتی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ اس ناظرین کو بتائیں، سانحہ گل پلازا کی آگ بجھ گئی ہے۔ ریسکیو آپریشن کے بعد عمارت کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ حادثہ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا ہے۔ جہاں باق افراد کے لواحقین ان جوابات کے منتظر ہیں کہ آگ حادثاتی طور پر لگی یا لگائی گئی۔ ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی شایان، اپڈیٹ کیجیے گا، اب کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، سرچ آپریشن مکمل کرنے کے بعد جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عمارت کو بھی سیل کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اس کے جو ہے مرچ کی گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو خطرناک ہے وہاں پر بھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت وقت سے جو ہے ٹیکنیکل اسٹافس اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر معائنہ بھی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ جو ملبہ اٹھانے کا کام تھا جو کہ اس عمارت وہ 40 فٹ گر چکا تھا، ملبہ سانحہ گل پلازا کی آگ بجھ گئی۔ ریسکیو آپریشن کے بعد عمارت کو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ حادثہ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا ہے۔ جہاں باق افراد کے لواحقین ان جوابات کے منتظر ہیں کہ آگ حادثاتی طور پر لگی ہے یا لگائی گئی ہے، گل پلازا کے دروازے بند تھے یا کھلے تھے۔ ایسے اور بھی کئی سوال ہیں جن کی تحقیقات کے بعد اصل کہانی سامنے آئے گی۔ شایان علی ہمارے ساتھ دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے، موجود ہیں۔ جی شایان، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے کے ایم سی اور جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی مشاورت کے بعد جو ہے اس کو عمارت کو جو ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کمزور پڑ گیا اور یہاں پہ موجود ہے اس کو جو منہدم کیا جائے گا، جبکہ اس سے قبل جو یہاں پر حصہ گر چکا تھا اس کو ملبہ جو ہے یہاں سے اٹھانے کا کام مکمل کر لیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو عمارت کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا، اور یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی شخص کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ جو 79 افراد کی جو وہ مسنگ ایک لسٹ ڈی سی ساؤتھ کی جانب سے تیار کی گئی، جس پر جو وہ 73 کی جو وہ کنفرمیشن کر لی گئی، جبکہ ان میں سے جو وہ 23 کی شناخت کر لی گئی، جو دیگر ہیں ان کی شناخت نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ بھی ہمیں جو ہے پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو ریسکیو پولیس سرجن جو ہیں ڈاکٹر سمیہ، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو دیگر اعضاء ملے تھے ان میں سے جو وہ شناخت کرنے کا جو وہ عمل مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے دیگر کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی، لیکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک جو ہے 23 افراد ٹیکنیکلی مدد سے جو وہ شناخت کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے کئی افراد کی جو وہ ڈیڈ باڈیز ان کے اہل خانہ کے حوالے کرنے کے بعد جو ہے نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس عمارت کو مکمل طور پہ سیل کر کے جو ہے اب کے ایم سی اور جو دیگر ٹیکنیکل جو ٹیمیں ہیں گی ان کے مدد سے جو ہے مشاورت کے بعد جو ہے اس کو منظم کرنے کا بھی جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ اس واقعے پر جو ہے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، جس پر جو نامعلوم ملزمان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا، جس پر جو دفعات دہشت گردی کی بھی لگائی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس پہ جو ایس ایس پی عارف عزیز ہے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس عمارت کے حوالے سے جب یہ واقعہ پیش ہوا اس کے بعد جو ہے تقریباً 6 جو سیکیورٹی گارڈ یہاں پر تھے ان سے بھی جو ہے بیانات قلم بند کر لی گئی، جبکہ جو دیگر ٹیکنیکل اسٹاف ہے، اگر میں بات کروں کہ جو ٹیکنیشینس ہوتے ہیں اس عمارت میں یا جو دیگر ہوتے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بیانات لیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تفتیش کو جو ہے تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد جو ہے اس معاملے کو حل کیا جائے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا جو ملبہ اٹھانے کا کام تھا اس کو بھی روک لیا گیا ہے، اور جو اس کے ساتھ اگر میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ میرے عقب کی صورتحال دوبارہ سے جو وہ ناظرین کے سامنے رکھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ آپریشن چل رہا تھا تیزی سے وہ اس وقت جو ہے یہاں پہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے، کیونکہ اندر کی جو آگ تھی وہ بھی جو ہے بجھ چکی ہے، لیکن جو حصہ یہاں پہ گرا ہوا تھا اس کا ملبہ بھی مکمل طور پہ اٹھا لیا گیا ہے، اور جو مشینریز ہے وہ بھی اس وقت ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھنڈی پڑی ہوئی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا کام جو ہے اس وقت روک لیا گیا ہے۔ جو حصہ بچا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ کے ایم سی اور جو بلدیاتی دیگر نمائندے ہیں ان کی مشاورت کے بعد جو ہے ان کو منظم کیا جائے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عمارت کے چاروں طرف ایم اے جناح روڈ سے لے کر یہاں تک جو ہے چوکنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے بانس کے ڈنڈے
शायान, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। सानिया गुल प्लाजा की आग तो बुझ गई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इमारत को भी सील कर दिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की दिल्ली कॉलोनी आमद। मेयर कराची ने सानिया गुल प्लाजा के शुहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की दिल्ली कॉलोनी आमद। मेयर कराची ने सानिया गुल प्लाजा के शुहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की दिल्ली कॉलोनी आमद। मेयर कराची ने सानिया गुल प्लाजा के शहादा के लवाहिकीन से ताज़ियत की है और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब दिल्ली कॉलोनी आमद। सानिया गुल प्लाजा के शहादा के लवाहिकीन से ताज़ियत की, गहरे दुख का इजहार किया। मेयर कराची ने मरहूमैन के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। सानिया गुल प्लाजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। मेयर कराची ने कहा कि दुख की इस घड़ी में शहादा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की दिल्ली कॉलोनी आमद। मेयर कराची ने सानिया गुल प्लाजा के शहादा के लवाहिकीन से ताज़ियत की है और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सानिया गुल प्लाजा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की दिल्ली कॉलोनी आमद। सानिया गुल प्लाजा के शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की, गहरे दुख का इजहार किया। मेयर कराची ने मरहूमीन के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। सानिया गुल प्लाजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। मेयर कराची ने कहा दुख की इस घड़ी में शोहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की दिल्ली कॉलोनी आमद। मेयर कराची ने सानिया गुल प्लाजा के शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की दिल्ली कॉलोनी आमद। सानिया गुल प्लाजा के शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत और गहरे दुख का इजहार किया। मेयर कराची ने मरहूमीन के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। सानिया गुल प्लाजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। दुख की इस घड़ी में शोहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। बेहंगम ट्रैफिक शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। PIDC शाहीन कॉम्प्लेक्स सदर बर्न्स रोड में बदतरीन ट्रैफिक जाम। कराची प्रेस क्लब जाने वाले रास्ते को कंटेनर लगाकर बंद किया गया। मुतबादिल रास्ते इख्तियार करना शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन गया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं दुरे शेवार से। जी दुरे, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ जंग प्रेस रोड पर, जहाँ पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे अकब में ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद है। 2 नहीं 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार है जो ट्रैफिक कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अच्छा जी, प्रेस क्लब पर कंटेनर लगा के जो रास्ता ब्लॉक किया गया है उस वजह से जो उसके मुतबादिल रास्ते हैं सदर और इसके अलावा आया चंडीगढ़ रोड, ये शदीद ब्लॉक हुआ है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये वो रोड है जो कि सदर से और टावर से ये रोड जाता है शाहीन कॉम्प्लेक्स, और शाहीन कॉम्प्लेक्स से ये रोड जाता है शारा फैसल की तरफ। और ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरी जो है मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो मौजूद है लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने में वो नाकाम नजर आ रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूंगी शहरियार से कि वो कैमरा पैन करके दिखाए कि ये यहाँ पर सब ट्रैफिक की सूरत हाल है और शहरी जो है उस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो दफातर से लोग अपने घरों पर जा रहे हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है कि एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए, एम्बुलेंस को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए यहाँ पर कोई एहलकार जो है सब मदद नहीं कर रहा है। ट्रैफिक में शहरी जो है शदीद परेशानी से सामना करते हुए अपनी अपनी मनाजिल तय कर रहे हैं। जी, बजट में ऐलान, अमल दरामद गायब। 6 माह गुजर गए, तनख्वाहें वहीं की वहीं। महकमे बल्दियात सिंध के मुलाजमीन को तनख्वाहों का इजाफा ना मिल सका। बल्दियाती काउंसिल्स के 15,000 से जायद मुलाजमीन इजाफी तनख्वाहों से महरूम हैं। आपको बताएं बजट में ऐलान के बावजूद अमल दरामद नहीं हो सका है। 6 माह गुजर गए हैं, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। महकमे बल्दियात सिंध के मुलाजमीन को तनख्वाहों का इजाफा न मिल सका। बल्दियाती काउंसिल्स के 15,000 से जायद मुलाजमीन इजाफी तनख्वाहों से महरूम है। बजट में ऐलान तो कर दिया गया मगर अमल दरामद न हो सका। 6 माह गुजर गए, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नौहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा, तनख्वाहों का इजाफा नहीं मिल सका है? जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात सिंध के 15,000 से जायद मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर अमल दरामद न हो सका है, जबकि बल्दियाती काउंसिल के 15,000 से ज्यादा मुलाजमीन ताहाल इजाफी जो तनख्वाह की गई थी उसमें उससे जो महरूम है ताहाल। इस हवाले से सिंध सरकार ने रवा माली साल 2025
और 2026 के सालाना बजट में 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजिम की तनख्वाह और पेंशन में 12%, जबकि 17 से 22 ग्रेड के अफसर की तनख्वाह में 8%, तनख्वाह और पेंशन में 8% इजाफा का ऐलान किया था। लेकिन 6 माह गुजर गए, जुलाई से 2025 से अभी तक बल्दियाती काउंसिल के मुलाजिम की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया है, जबकि बल्दियाती काउंसिल में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, जिला काउंसिल, टाउन काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल, यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटीज शामिल है। जबकि बल्दियाती काउंसिल के मुलाजमीन का एहतजाज भी असर दिखा चुका है, जबकि महकमा बल्दियात की सिफारिश पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ताहाल अमल दरामद नहीं किया, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी हैं एडमिन महकमा बल्दियात के, उनका दावा यह है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध को समरी अरसाल कर दी है, जब मंजूरी दी जाएगी तो उस पर अमल दरामद किया जाएगा। उनका ये कहना है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद महकमा खजाना इजाफी रकम जारी करेगा तो इजाफी तनख्वाहें और पेंशन मुलाजिम को अदा कर दी जाएंगी। जी ठीक है आज़ाद नोहरियो, आपका शुक्रिया। उधर न्यू कराची 6 नंबर कब्रिस्तान की सरकारी ज़मीन पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई, 35 से 40 गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ मिस्मार, कब्रिस्तान की ज़मीन मुकम्मल वागज़ार करा ली गई। तफसीलात जानते हैं सैयद रिजवान अहमद से। जी रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न न्यू कराची फरीद हनीफ की जानिब से जो है आज बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। न्यू कराची 6 नंबर कब्रिस्तान की सरकारी ज़मीन पर जो है कायम गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया है और बताया जा रहा है कि 15 एकड़ अराजी जो है वो वागुजार करा ली गई है और इस सिलसिले में 35 से 40 गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ जो है वो मिसमार की गई हैं, जो कब्रिस्तान की ज़मीन को जो है वो इंगेज की हुई थी, मुकम्मल तौर पर वागुजार कार्रवाई के दौरान जो है वो पुलिस की भारी नफरी और महकमा इंतज़ामी तजावुज़ात ने जो है ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। कब्जा माफिया की जानिब से जो है वो रद्द अमल भी सामने आया, पथराव किया गया और पुलिस ने जो है सूरत हाल पर कंट्रोल किया। जी रिजवान अहमद, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जामिया कराची और मलेशिया की यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मारा के दरमियान अहम मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, ICC, BS और मलेशियन जामिया के दरमियान नेचुरल प्रोडक्ट्स और इत्तलाकी हयातियाती उलूम में ताउन, प्रोफेसर रजा शाह और डॉक्टर फातिमा सलीम ने यादाश्त पर दस्तखत किए। आपको अपडेट कर रहे हैं जामिया कराची और मलेशिया की यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मारा के दरमियान अहम मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, ICC, BS और मलेशियन जामिया के दरमियान नेचुरल प्रोडक्ट्स और इत्तलाकाती हयातियाती उलूम में ताउन, प्रोफेसर रजा शाह और डॉक्टर फातिमा सलीम ने यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। आपको बताएं, नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च में पाकिस्तान और मलेशिया का इश्तराक, जामिया कराची और मारा के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। तालीमी और तहकीकी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए नया मुआहदा इत्तेफाक किया है। प्रोफेसर रजा शाह और डॉक्टर फातिमा सलीम ने यादाश्त पर दस्तखत किए। तालीम, तहकीक और सकाफत के फ़रोग के लिए पाक मलेशिया मुआहदा, मकसद तालीमी, तहकीकी, सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग देना है। दस्तखत जामिया कराची में एक तकरीब में हुए हैं। आपको बताएं, जामिया कराची और मलेशिया की यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मारा के दरमियान अहम मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं। ICC, BS और मलेशियन जामिया के दरमियान नेचुरल प्रोडक्ट्स और इत्तलाकी हयातियाती उलूम में ताउन, प्रोफेसर रजा शाह और डॉक्टर फातिमा सलीम ने यादाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह से बरतानवी काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। बरतानवी काउंसिल जनूबी एशिया के रीजनल डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द की आमद, तालीम की बेहतरी, असातिज़ा की तरबियत और मयारी तदरीस पर अहम मुशावरत। सिंध में 1000 मेंटोर्स और 3000 असातिज़ा की तरबियत का हदफ। EASTE प्रोग्राम के दूसरे मरहले पर काम तेज़ी से जारी है। बरतानवी काउंसिल के सिंध के तालीमी इक़दाम की भरपूर तारीफ़। बरतानवी काउंसिल की हुकूमत सिंध को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का डिजिटल तालीमी इस्लाहात का सफ़र। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर बेस्ड निज़ाम के तहत इम्तहानात का इनेकाद किया गया। KMU ने सरकारी जामियात में डिजिटल इम्तहानी निज़ाम की कामयाब मिसाल कायम कर दी है। आपको बताएं, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का डिजिटल तालीमी इस्लाहात का सफ़र। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर बेस्ड निज़ाम के तहत इम्तहानात का इनेकाद हो गया है। KMU ने सरकारी जामियात में डिजिटल इम्तहानी निज़ाम की कामयाब मिसाल कायम कर दी है। कराची पोर्ट पर 2 मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर कंटेनर्स की जांच पड़ताल में ताख़ीर देखने में आ रही है, जिससे क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स की मुश्किलात बढ़ गई हैं। क्लियरिंग एजेंट्स का कहना है कि टर्मिनल्स पर कैपेसिटी से ज़्यादा कंटेनर्स आने की वजह से ये मुश्किलात पैदा हुई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, केपीटी की जो मुख्तलिफ टर्मिनल्स हैं उस पर जो सरगर्मियाँ हैं पोर्ट्स की, उसके हवाले से जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ इतलात ये आई हैं कि काफ़ी तादाद में जो कंटेनर्स हैं वो मुख्तलिफ टर्मिनल्स में मौजूद हैं, और उन कंटेनर्स की जो एग्जामिनेशन है उसमें जो है वो ताख़िर हो रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट असद उवैस साहब, इनसे जानते हैं असद साहब क्या सूरत हाल है, जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं वो इस वक्त किन मसाइल से गुजर रहे हैं, क्या मुश्किलात दरपेश हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आ रही हैं हम लोगों को। सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे मुख्तलिफ पोर्ट्स ऐसे हैं जिनके पास ग्राउंडिंग कैपेसिटी एग्जामिनेशन एरिया में कम है, और उनके पास उन्होंने कंटेनर्स बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, जिस वजह से जैसे कि एक पोर्ट के ऊपर 200 कंटेनर एग्जामिन होना है तो 600 कंटेनर एग्जामिनेशन पे आया हुआ है, तो बैकलॉग मुसलसल बरकरार है, जिसकी वजह से 10-15 दिन जो है कंटेनर ग्राउंड नहीं होता है। ज़्यादातर इम्पोर्टर्स के पास 14 डेज़ या 21 डेज़ फ्री होते हैं, जिसके अंदर अगर 21 डेज़ या 14 डेज़ फ्री हैं तो 14 डेज़ अगर गुजर जाते हैं, 10 दिन बाद भी कंटेनर एग्जामिनेशन में आता है, एक दिन एग्जामिन में लगता है, एक आध 2 दिन असेसमेंट में लगते हैं, उसके बाद इम्पोर्टर को काफ़ी हैवी डैमेज और डिटेंशन का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से इम्पोर्टर का जो है उसका जिम्मेदार हम क्लियरिंग एजेंट्स को करार दे रहे हैं। हालांकि ये जो है पोर्ट की सरासर गफलत है कि अगर इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो अपने पास कैपेसिटी बनाएं या फिर कंटेनर्स ही ना लें इतने ज़्यादा, जिस वजह से ट्रेड बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी सिलसिले में मैं मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग और चीफ कलेक्टर जो कि हमारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और उनके आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि काइंडली इस मैटर को रिजॉल्व करें। इन शिपिंग लाइन वालों के लिए कोई क्राइटेरिया बनाएं ताकि ये लोग ग्राउंडिंग और इन चीज़ों के अंदर जो है हेल्प आउट कर सकें, और ताकि चीज़ें जैसे स्मूथली कस्टम में हो रही हैं या असेसमेंट में हो रही हैं वैसे स्मूथली एग्जामिनेशन में हो, पोर्ट्स पे हो, आसानियाँ पैदा हों ट्रेड के लिए, ताकि मुल्क की मैशियत और ज़्यादा बेहतर हो। इस वक्त शदीद ना सिर्फ मुश्किलात से दो चार है, बल्कि इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो मुख्तलिफ पोर्ट पे जो टर्मिनल्स हैं उन पे सरगर्मियों को और बिलखुसूस एग्जामिनेशन का जो अमल है उसको तेज़ किया जाए, ताकि तेज़ी से जो है वो पोर्ट सरगर्मियाँ जो है वो मुकम्मल हो सकें, और उसमें भी तेज़ी है, उसके साथ साथ क्लियरिंग फॉरवर्डिंग जो एजेंट्स हैं उनको किसी भी मुश्किल से दो चार ना होना पड़े। जी यहाँ आपको बताएं, मैट्रिक बोर्ड कराची में स्टूडेंट वीक जारी, तलबा में मुकाबले 28 जनवरी तक जारी रहेंगे। इवेंट में अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी में हुस्न ख़ैरात के मुकाबले शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। जी राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए बोर्ड ऑफ मैट्रिक बोर्ड में जो है वो स्टूडेंट वीक का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सुगो साहब मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले रहे हैं। सर क्या कहते हैं, स्टूडेंट वीक का इनेकाद किया गया है, कब से जो है वो इसका सिलसिला शुरू हुआ है और कब तक इख्तिताम हो जाएगा? साथ ही ये भी बता दें कि बच्चों के लिए इस तरह की सरगर्मियाँ, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो मुस्तकबिल में उनके लिए ज़्यादा जो है वो कितना फ़ायदेमंद हो सकते हैं? स्टूडेंट वीक ये 20 जनवरी से शुरू हुआ एंड 28 जनवरी तक चलेगा। इसका मेन मकसद ये है कि बच्चों को क्लासरूम में स्कूल एनवायरनमेंट से बाहर कोई ओपन ऐसा एकेडमिक माहौल दें जहां वो अपना जो सीखा है, स्किल्स है, कॉम्पिटेंसीज है, लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसी को बुनियाद बना के वो शो करें अपने स्कूल के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में कि ये हम चीज़ें सीख चुके हैं। तो एक अच्छा होता है एक एक्स्ट्रा म्यूरल या एक्स्ट्रा करिकुलर आउट ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट से बच्चों को बाहर लेके कंपटीशन का माहौल दें, तो बच्चे उसमें एक दूसरे से भी सीखते हैं, और यह भी महसूस होता है कि किस स्कूल ने कौन बेहतर तैयारी करवाई है। तो हमारे लिए 2-3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो हम असेस करते हैं कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो, इस्लामियात हो, फिज़िक्स, बायोलॉजी एट्सेट्रा, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो बच्चों में कितना ट्रांसफ़र हो चुका है। अच्छा सर, ये भी बता दें कि हर साल होते हैं? हाँ, बच्चे उस चीज़ को फिर किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह रिलेट कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में, ये हर साल होता रहता था। अभी भी इस साल हमने उसी को किया, लेकिन इस साल हमने कुछ चीज़ें नई की हैं, जैसे बच्चों को सोवेनियर्स में बुक दे रहे हैं, और उनके लिए कैश अवार्ड रखेंगे, और उनके लिए एक बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम आखिरी दिन पे करेंगे जिसमें मिनिस्टर, सेक्रेटरीज एंड जर्नलिस्ट भी, हमारे रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट भी होंगे। तो बस बच्चों में एक माहौल देना है कंपटीशन का, ठीक है, और ज़्यादा एक्टिव रहने का अपने एकेडमिक एंड स्टूडेंट लाइफ में।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जनरल पैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सुहो साहब मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि बच्चों के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका यही कहना है कि मुख्तलिफ 20 जनवरी से जो है उन मुकाबलों का इनेकाद हुआ था जो कि 28 जनवरी तक जारी रहेगी। निजी होटल में अवामी फलाह बहबूद और समाजी जिम्मेदारी की पहचान के उन्वान से अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। कराची में तैनात जमहूरिया आइवरी कोस्ट के एजाज़ी काउंसिल जनरल को CSR अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में सफारतकारों, फलाही इदारों के नुमाइंदों और मारूफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं निजी होटल में और CSR अवार्ड की पुरवकार तकरीब जो है वो आज यहाँ पर सजाई गई है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स, कारोबारी शख्सियात और फलाही इदारों से वाबस्ता शख्सियात को आज अवार्ड से जो है वो नवाजा जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द आइवरी कोस्ट के एजाज़ी कौंसल जनरल मारूफ सनतकार फजल करीम दादा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे, आज आपको भी अवार्ड मिला है और ये जो अवार्ड है बेसिकली ये उन कामों का एतराफ़ है जो कि फ़लाह बहदूद के लिए किए जाते हैं, फ़लाही काम किए जाते हैं। आपने भी इससे कबल जो है हमने देखा कि मुख्तलिफ फ़लाही कामों में पेश दिखाई दी, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं नदीम साहब को मुबारकबाद कहूँगा और उनकी पूरी टीम को जिनने आज ये CSR एक्सीलेंस अवार्ड का इनेकाद किया है, और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनने जो है मुझे भी इसमें नॉमिनेट किया और अवार्ड दिया है। और बिल्कुल जी, CSR एक किसी भी माशरे के अंदर CSR का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और जो लोग CSR एक्टिविटी को बढ़ चढ़ के करते हैं तो उससे जो है सोसाइटी में भी बेहतरी आती है, और मैं समझता हूँ उनको इस तरह रिकग्नाइज़ करना एक बहुत ही खुशाइन इक़दाम है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल जी, बहुत ही खुशाइन इक़दाम है। और आज की तकरीब में गवर्नर सिंध के एडवाइज़र तारिक मुस्तफ़ा जो हैं वो भी शरीक हैं और मुख्तलिफ शख्सियात को अवार्ड्स जो हैं वो तफ़वीज़ किए गए हैं।